to continue in this session, that is from 10 to 11:30. And in fact, she is not in Aligarh. She is at her hometown in Kerala. But still, I mean, she is so much dedicated. I requested her to do the needful in emergency situations, so she did it. So basically, an expert of language education. Her subject is English, but she knows so many languages, and it is her dedication that she has learned Sanskrit, she has learned Hindi, and she is very comfortable in all these three languages. She is a very good teacher, a very good researcher, and one thing very remarkable about Noora ma'am is that at such a young age she has brought three projects to the department. So Noora ma'am is very dependable, reliable, very much trustworthy, and of course an integral part of my team. And I give her opportunity to deliver a lecture in almost every of my program. So the moment your principals came to meet us, they talked about rubrics. They were quite worried about rubrics. So what are rubrics? How to make the rubrics? I mean, such type of things. Since Noora ma'am has a specialization in that, so I thought that she will be the most suitable person to do the needful. So if you remember, on Saturday, Professor Nakat Nasreen talked so many issues related to assessment, and she touched on such issues like Bloom's taxonomy and other things. I think in the continuity of that, Noora ma'am will continue, and she will discuss in detail what are rubrics and how to frame the rubrics. And Noora ma'am, these participants are very curious learners, in fact. So they listen to every resource person very carefully, very patiently, and of course, they ask very meaningful questions also, and they are very responsive. So I'm quite sure you are going to enjoy their presentation. So with this short introduction, I'm handing over the session to today's resource person, Dr. Noora Abdul Qadir, Assistant Professor in the Department of Education, Aligarh Muslim University. So Noora ma'am, it's over to you. Thank you so much, sir. That was quite an elaborative, introduction. And thank you so much. I don't know whether I deserve it or not, but it's very happy when it is hearing from Professor Sajid Jamal, sir. Actually, as he said, I am in Kerala right now, and खूब बारिश हो रहे हैं. मतलब it's almost like flood-like situation. That's why there is on and off of light. Sometimes I have to, open the curtain. I think it's okay with you, and I'm audible also, isn't it? Sure, ma'am. You are audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, it is almost a flood-like situation over here. अलीगढ़ में शायद बहुत गर्मी होंगे. Here also it is raining, ma'am. काफी मैम, काफी गर्मी हो रही है अलीगढ़ में जी. काफी गर्मी हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे Raining, sir. It's raining in Aligarh. हाँ, यहाँ पे कितने बारिश हो रहे हैं. You can see it's almost like flood. मतलब पूरे. Alhamdulillah, the weather is well today. Weather is well. Sure, that is, Allah is great. मतलब अलग-अलग जगहों में अलग-अलग climate, everything. So as he said, Sajid Jamal sir said, we know that assessing the performance of the students, Nakat Nasreen ma'am might have given you an overview with respect to how to assess the performance of the students by using different type of questions, and also with respect to Bloom's taxonomy. And I know that you must be very well aware about that. We know that judging the performance of the students, or assessing or evaluating the performance of the students, आसान काम नहीं है. मतलब when we are judging the performance of the students, वो उनका future indicate कर रहा है. Judging the performance means मैं ये नहीं कह रही हूँ जो वो लिख रहा है उसको आप लोग assess कर रहे हैं. कुछ भी हो, उनके जैसे भी overall performance हो, अगर उसने कुछ अच्छा किया है, बिहेवियर, पर्सनालिटी, और जो कुछ भी लिख कर आ रहा है, बोल रहा है, वी आर जजिंग इट. सो जो बच्चे स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, दे डोंट बिहेव लाइक हाउ दे आर सिटिंग एट होम. घर पे जिस तरह बैठते हैं, जिस तरह बातें करते हैं, उस तरह नहीं ये क्लासरूम में. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वी आर ऑलवेज अंडर सर्वेलेंस, है ना. हाँ, टीचर जा रहा है, टीचर देख रहा है मुझे, मतलब she is monitoring us, she is talking about us. अरे मत बोल, वो टीचर देख रहा है, यहाँ पे चुप बैठो, मैडम आ रहे हैं.
मतलब they feel like they are always under surveillance. Am I right or wrong? आपका क्या ख्याल है इसके Yes, ऊपर? ma'am. Yes, ma'am. You're You are right. absolutely right, ma'am. एग्जैक्टली Yes, ma'am. क्योंकि वो जजिंग है, क्योंकि घर पे किस तरह बैठे माँ बाप से बैक आंसर दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। लेकिन क्लासरूम में यानी कि स्कूल में ऐसा नहीं है। आंसर लिखते वक्त, बोलते वक्त, चलते वक्त बच्चे ये कह रहे हैं कि हाँ वी आर ऑलवेज असेस्ड, इजंट इट? मतलब जिस तरह का वो जो असेसमेंट का जो क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो अलग बात है। पहले जो हम लोग वैल्यूज में बहुत फर्क आ गए ना, जजमेंट का जो क्राइटेरिया में बहुत फर्क आ गए हैं। जैसे कि आई यूज टू स्टैंड अप ऑलवेज व्हेन माय फादर इज कमिंग आउट फ्रॉम, मतलब वो घर पे थे, बाजार में कुछ लेने के लिए गए और वापस आ गए, तब भी मैं उठ जाती हूँ घर से। आजकल के बच्चे ऐसे करते हैं? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. The Mostly, thing is no. that what I feel is that my daughter is not doing that when my husband is coming from outside. हाँ, वो तो मतलब it's like that. वो ऐसा ही है कि मतलब because my father, for example, बहुत रेस्पेक्ट करते थे। रेस्पेक्ट इन द सेंस मीन्स सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक डर भी था, डर के थ्रू भी एक रेस्पेक्ट था। मतलब उसी पापा से, मतलब टू माय सन, मेरे पापा तो उसका ग्रैंडफादर है। एक दिन पापा ने कहा कि जयान नाम है उसका, जयान वो दरवाजा बंद करो। तो जयान छोटा है, 5 इयर्स का था, तो उसने कहा आपने खोला है ना, आप खुद बंद कर लीजिए बस। तो आई वॉज शॉक्ड, इसने ऐसे कैसे बोला मेरे पापा से, isn't it? So that means the values जो है हमारे, हम जब उठ जाते थे, हमारे माँ बाप या बड़े लोग घर पे आते थे। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? दे आर रिमूविंग देयर ईयरफोन्स, है ना, एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट। ईयरफोन्स रिमूव करते, थोड़ा सा सही करके अच्छे से बैठ जाते हैं। ये है, वैल्यूज भी चेंज हो गए हैं, जजमेंट का क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं। तो हमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस लेकर आना है। हमारे जो, हम जिस तरह बच्चों को असेस करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा, जैसे कि हम लोग असेस करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि असेसमेंट जिस तरह हम लोग कर रहे हैं अभी तक जो करके आ रहे हैं वो गलत है, नहीं है। टीचर्स आर ऑलवेज राइट। मैं हर वक्त ये मानती हूँ कि टीचर्स आर ऑलवेज राइट, है ना, क्योंकि दैट इज वाई शी और ही इज अ टीचर। टीचर गलत नहीं, काम नहीं करेंगे, टीचर इज ऑलवेज राइट। चाहे वो केजी स्टूडेंट्स के टीचर हो या प्रोफेसर हो, टीचर इज एंड टीचर शुड एंड विल बी ऑलवेज राइट। टीचर कभी गलत नहीं होते हैं, मतलब डेलिबरेटली कभी भी किसी स्टूडेंट्स का नुकसान के लिए हम उसको जज नहीं करेंगे। तो इस तरह बच्चों को जज करने के लिए, यानी कि इवैल्यूएट करने के लिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, कि इसको ज्यादा मार्क्स मिला है, उसको कम मार्क्स मिला है, मुझे ज्यादा मार्क्स मिला, मैंने भी उसके तरह ही लिखा था, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स क्यों कम आ गए, उसके मार्क्स क्यों ज्यादा आ गए। इस तरह का मतलब क्या कहते हैं, सब्जेक्टिविटी यानी कि पार्शियलिटी नहीं आना चाहिए। अगर ऐसी चीजें नहीं हो तो जजमेंट थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा, इट विल बी मोर ऑब्जेक्टिव। उस तरह का एक इवैल्यूएशन टेक्निक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और उसका नाम है रूब्रिक्स। और रूब्रिक्स जो है नोइंगली और अननोइंगली हम सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आज तक हमने इस्तेमाल नहीं किया है, इट्स अ वेरी न्यू टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अभी तक इस्तेमाल, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस वगैरह ला करके मैं अभी आज का क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे रूब्रिक्स के ऊपर। मुझे लग रहा है कि हो सकता है मेरे हिंदी में थोड़ा सा वो होगा, मतलब ग्रामर का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, इजंट इट? Yes, ma'am. मुझको समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरे No, लैंग्वेज, ma'am. No problem at all. हाँ मेरी लैंग्वेज में मतलब इस तरह का जेंडर डिफरेंस नहीं है ना, आप लोग गिर गई और गिर गया, मेरे लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, दोनों गिर गया ही है। नो इशू मैम। No issue. ओके। और ये प्रॉब्लम मुझे ज्यादा होते हैं कि हिंदी में नॉन लिविंग थिंग्स को भी जेंडर है। चलिए ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन।
Can you see this screen? No, ma'am. No, Yes. ma'am. No, not yet, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, Yes, ma'am. Visible, visible. Visible, ma'am. Now visible. Just a second, it is opening. I think the PPT is now clear. Yes, yes, ma'am. Assessment through rubrics. Exactly. Assessment through rubrics. वेल मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जिस तरह का मतलब इंस्टेड ऑफ ओनली giving a lecture, because we all are in the same platform, I would like to conduct a discussion on this topic, that is assessment through rubrics. Okay, तो rubrics में जाने से पहले let's begin with a few questions. यहाँ पे a few questions हैं, दिख रहा है आपको? yes, ma'am. Yes, there are a few questions, just like state Newton's law of motion, give examples of Newton's law of motion, identify the use of kinetic energy, distinguish between kinetic energy and potential energy, using conversation, conservation of energy is better to solve, justify, prepare a working model dealing with the conservation of energy. क्या ये सारे questions एक ही type का है? टाइप पूछ रही हूँ मैं, क्वेश्चन सब अलग है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. They are different. No, ma'am, they are different. हाँ, मतलब क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको इस टाइप क्वेश्चंस में? They Some range are from memory judging the cognitive domain, some from memory जी, based to application the creativity. to coordination to comprehension. हाँ, कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा Some are ended and some are close-ended. एग्जैक्टली, वेरी गुड, थैंक यू सो मच. तो मैं ये And कह रही some हूँ are definition based and some are practical based. exactly, some are application based, some are simply knowledge based, some are understanding based, some are analysis based, है ना? Using conservation of energy is better to solve, justify your answer, वो analysis पे है, बच्चे को उसको analyze करना है. तो बस सिंपल ये है कि सवाल जब पूछते हैं हमें किस तरह का सवाल रखना चाहिए था कि थोड़ा सा नॉलेज से लेकर एप्लीकेशन लेवल तक पहुंचना चाहिए. इसमें भी ये ध्यान रखना नहीं चाहिए कि सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन लेवल पे आपने दे दिया. आपने आजकल का नीट जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ मतलब उसके बाद बच्चे बहुत रो रहे थे, बच्चे बहुत मतलब स्पेशली फिजिक्स के पेपर पे बच्चे उसके ऊपर बहुत बोल रहे थे, काफी कंट्रोवर्शियल हुआ था. क्यों हुआ था ऐसा? आप लोगों ने सुना था किसी ने? Yes, ma'am. Physics portion was very tough. That's why, ma'am. वेरी टफ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एप्लीकेशन लेवल पे पहुंच गए. सो डू यू थिंक दैट दैट इज अ गुड स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन पेपर? Not at No, all, ma'am. ma'am. No, ma'am. नेवर, ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं ये बात वेरी क्लियरली कह रही हूँ, सवाल पूछने का ये मतलब नहीं है कि आप अपना नॉलेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत है वो, है ना? सवाल में ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी चीजें जानते हूँ तो उसके बेसिस पे मैं बच्चों को इवैल्यूएट कर रही हूँ. इज दैट द राइट वे ऑफ इवैल्यूएशन? नो. No, ma'am. आपको अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत सारी चीजों के बारे में पता होगा, है ना? मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में पता है, तो मैं यही सवाल पूछूंगी नहीं. एम्पैथेटिक होना चाहिए. पुट योरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, फिर सवाल पूछो. आपने जो पढ़ाया सिर्फ उसी के बेसिस पे सवाल पूछना है, वो भी गलत है. मैंने 5 चैप्टर पूरा कवर करना था, मैंने 3 पढ़ाया, मैंने सिर्फ उसी में से सवाल पूछा, 2 मैंने छोड़ दिया. इज दैट अ गुड क्वेश्चन पेपर? नहीं, वो भी नहीं. क्योंकि जो करिकुलम जब हम लोगों ने सेट किया था, we have taken into consideration the psychological level and also the emotional level, उनका जो इंटेलिजेंस लेवल, सब चीजें कंसिडर करके हम लोगों ने इस तरह का करिकुलम बनाया है. तो उसमें
जितने भी हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, जितना भी चैप्टर्स हम लोगों ने सेट किया है, वो उतना ही है जो बच्चे पढ़ सकते हैं, उससे न कम न ज्यादा। तो उसी के बेसिस, दैट मीन्स दिस इज व्हाट माय पॉइंट है। इफ यू वांट टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स, पहले आपको पढ़ाना है ना, और दैट टू इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, and then ask the questions. And what all type of questions that we are asking? We have to ask questions from all level. Simple questions भी होना चाहिए, difficult questions भी होना चाहिए, average questions भी होना चाहिए। तो ज्यादा कौन से लेवल पे क्वेश्चंस होना चाहिए, सिंपल या एवरेज या टफ? Ma'am, average level. Average. Because the statistical analysis is also telling that majority of our students comes in the average level. Simple भी रखो ना, थोड़ा सा उनको मोटिवेशन भी हो जाएंगे। नीट के एग्जाम में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सवाल गलत था, उन्होंने सही नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसा सवाल पूछा ताकि बच्चों को ये एहसास हुआ कि हम कुछ नहीं है। 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का हमारे मेहनत, मतलब मैं एक मतलब आई एम अ मोरॉन, आई एम एन इडियट, आई एम गुड फॉर नथिंग, ये एहसास हुआ स्टूडेंट्स को। गलत है तरीका, isn't it? So that means you have to start from the symbol, average questions भी पूछो और थोड़ा सा higher order thinking level questions भी हमें पूछना। मैम ऐसा करना चाहिए कि शुरू के क्वेश्चन जो है वो आसान दें, शुरू के जो Exactly. क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वो थोड़े Third. सिंपल से दें तो बच्चा थोड़ा आंसर सही Relax हो करेगा जाए। तो मोटिवेशन मिलेगा। Exactly. So that means उसको हम लोग maxims of teaching कहते हैं, simple to complex। वो सवाल पूछने वक्त भी होना चाहिए, simple to complex, known to unknown, near to far, ये सब चीजें हम लोग उसमें साइकोलॉजिकल लेवल पे भी इसको, ये सब चीजों को हमें देखना चाहिए, ताकि हर लेवल का क्वेश्चंस हमें इंक्लूड करना चाहिए, हर यूनिट से हमें इंक्लूड करना चाहिए, हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें इंक्लूड करना चाहिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं कि 5 चैप्टर्स थे, 2 चैप्टर्स थे, बहुत कम सवाल पूछा क्योंकि टीचर को वो चैप्टर पसंद नहीं था, मुझे वो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने 1-2 सवाल पूछ के छोड़ दिया, बाकी सारे सवाल फर्स्ट 3 चैप्टर में उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। गलत है। दैट इज ऑल्सो नॉट एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह के छोटे छोटे चीजें हैं, हमें ऐसा लगेगा कि ये तो हम लोग कर रहे हैं, ये तो छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन बच्चों के जो दिमाग में, उनके बिहेवियर में, इमोशंस में और उनके तरक्की में इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है, isn't it? So let's be more objective in preparing the questions. बस ये एक पॉइंट था। I hope it is clear to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let's move on to rubrics. Rubrics क्या होता है? नाम, हाँ, नाम जो है शायद हम लोगों ने पहले सुना होगा, इतना बड़ा रोबोटिक साइंस तो है ही नहीं है। रूब्रिक्स बहुत सिंपल है। ओके, एज द नाम भी कितना क्यूट है ना, रूब्रिक्स, उसी तरह रूब्रिक्स भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है मैंने, इतना ज्यादा डेफिनेशन में जाने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं ये कह रही हूँ एक सिंपल सा असेसमेंट टूल है। ओके, बच्चों के जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करने के लिए एक सिंपल असेसमेंट टूल है, उसको हम कहते हैं रूब्रिक। सो इसमें जो है, फिर देखते हैं कि रूब्रिक्स होता क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस भी हैं, ऐसे क्वेश्चन भी है। मान लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, वो कैसे इवैल्यूएट करेंगे हम? वो आसान है ना इवैल्यूएट करना। एमसीक्यू मान लीजिएगा, एमसीक्यू इवैल्यूएट करना आसान है या मतलब डिफिकल्ट है? Yes, ma'am. It's very easy. Easy, ma'am. It's very easy. See for example, who is the Prime Minister of India? अगर उसने सही जवाब दिया तो 1 मार्क, गलत हो तो इट्स वेरी इजी। शॉर्ट आंसर को आप लोग कैसे इवैल्यूएट करते हैं?
अगर एक स्टूडेंट ने ऐसे का सवाल पूछा, आपने 10 मार्क का सवाल पूछा, स्टूडेंट ने 50 बच्चे हैं आपके क्लास में, आपने ऐसे पूछा और 50 बच्चों ने ऐसे का जवाब दिया, उसको इवैल्यूएट करना आसान है या मुश्किल है? डिसाइड करना पड़ेगा कौन से पॉइंट्स हमें रखने हैं, We हाँ, take into लेकिन account पॉइंट्स value हमें मार्क्स points. देने, ये पहले हमें सोच के रखना पड़ेगा। पहले We आप take into सोच, account value points. मैम आंसर हाँ, 3 चीज पे बेस्ड होगा। हाँ, आंसर एग्जैक्ट जो बेस्ड होगा वो कंटेंट पे भी होगा, एक्सप्रेशन पे भी होगा, फॉर्मेट पे भी होगा। ओके। देख लीजिए आप लोगों ने भी मैम अलग ग्रामर अलग, स्पेलिंग पे भी होगा। हाँ, किसी ने कहा कि कंटेंट पे, एक्सप्रेशन पे, किसी ने कहा कि वैल्यू पॉइंट्स, इस तरह करके, है ना। तो दिस मेकिंग ऑफ दिस मार्किंग स्कीम और द स्कोरिंग की ऑफ एवरी क्वेश्चन प्रायर टू द एग्जामिनेशन से पहले जब आप क्वेश्चन बनाते हैं, उसी वक्त आप लोग अलग अलग पॉइंट्स करके, अलग अलग पॉइंट में अलग अलग क्राइटेरिया सेट करके, मतलब उसको एक एक क्राइटेरिया को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं रूब्रिक्स। हर सब्जेक्ट में रूब्रिक्स एप्लीकेबल है, whether it is mathematics, English or science, or simply if you are giving any assignment to the students also, rubrics will be very helpful to you. और rubrics बनाना भी इतना आसान नहीं है, इसलिए सारे टीचर्स करते नहीं है। मतलब मैंने एक रूब्रिक्स बना लिया, 8th A में मैं पढ़ाती हूँ, 8th B में कोई और टीचर पढ़ाते हैं सेम सब्जेक्ट, उन्होंने अपना रूब्रिक्स बना लिया। No, rubrics should be standardized. You are setting criteria for each and every answers. For example, when you are giving certain mathematical problems to the students, you are evaluating the students' performance with a well-designed rubrics. तो रूब्रिक्स का जो स्ट्रेंथ जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इट इज मोर और लेस ऑब्जेक्टिव, किसी को भी कोई शिकायत नहीं होंगे वहां पे कि उसको ज्यादा मार्क्स दिया और उसको कम मार्क्स दिया। और रूब्रिक्स में ये है कि हर कोग्निटिव स्किल्स को, यानी कि इफ इट इज psychomotor skill, if it is analysis, if it is understanding, if it is knowledge, हर क्राइटेरिया के बेसिस पे हम पहले ही रूब्रिक सेट कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे वेरी कंसिस्टेंटली, इन ए वेरी फेयर मैनर, इन ए वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर हम बच्चों के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को एसेस कर सकते हैं। और उसमें एक और बात भी है कि रूब्रिक्स के हिसाब से बच्चे सेल्फ एसेस भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे? रूब्रिक्स जो है हमें पहले बच्चों को बताना चाहिए। सी फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेलिंग यू माई सन, मेरा ज्यादातर एग्जाम्पल्स मेरे बच्चे ही हैं, आई होप यू डोंट माइंड। सो एक असाइनमेंट दिया था टीचर ने एक टॉपिक के ऊपर, इट वाज विद रिस्पेक्ट टू साइंस। तो उसमें जो है, इसमें ये बहुत एक्साइटेड था, कुछ नया टॉपिक्स लेकर आ गया और उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च वगैरह किया और ये कह रहे कि मतलब काफी एक्साइटेड थे, मतलब ऑलमोस्ट 10 to 20 डेज उसने उसके ऊपर काम किया और ये कह रहे कि मम्मा आई एम गोइंग टू सबमिट समथिंग वेरी न्यू टू माय टीचर। इस तरह करके एक मतलब स्टेपल करके उसने वो असाइनमेंट जो है टीचर को सबमिट किया and he was expecting 100% of marks in it. काफी स्टूडेंट्स को उसमें 100% of marks मिला भी है। When the result came, he got 17 out of 20. वो बहुत अपसेट था, बहुत अपसेट, मतलब बहुत ही अपसेट था। तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तो कह रहे कि नहीं मम्मा, मैंने बहुत मेहनत किया है उसके ऊपर, why it got like this? So he went to the teacher and he asked, sir, मेरा ये 3 मार्क्स यहाँ पे जो कम हुआ है, आप जरा बता दीजिए कि why is it so? So टीचर ने कहा कि तुम्हारा असाइनमेंट तो सही है, लेकिन जो बाहर का जो डेकोरेशन है ना, कुछ बच्चे करते हैं ना अच्छे से, मतलब कुछ चार्ट पेपर बना के और उसमें ये सब चीजें बना के, फ्लावर्स वगैरह बना के करते हैं प्रेजेंटेशन, हाँ प्रेजेंटेशन, वो सही करते हैं।
हाँ, उसने तो बहुत सिंपल सा एक मतलब A4 शीट था, स्टेपल किया था, उसमें असाइनमेंट का नाम भी लिखा था और अपना नाम भी लिखा था और दे दिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आप बता सकते हैं? मैम ने कंटेंट नहीं चेक किया। Ma'am, that should not be the actually Rubrics criteria were for the not judgment used. of the assessment. Ma'am, teacher is focusing on But the presentation, not criteria on is the not content. given. Not on More the emphasis content. on presentation, less on content. Maybe Ma'am, he should be presentation actually. is a part of her or his rubrics. Ma'am, it is not Ma'am, objective. proper rubrics were not Objective used. की वजह से problem. Ma'am, the teacher should have specified earlier Exactly. that the presentation will also carry marks. That is the point. That is the point that I want to discuss. बता दीजिए आप बच्चों को, रूब्रिक्स ऐसे चीज नहीं है कि हाँ मैंने ये सब क्राइटेरिया बनाया है, इसको मैं छुपा के रख रही हूँ, मतलब जैसे बच्चों के मार्क्स आए मैंने ऐसे ही उसको एक्सप्लोड कर दिया। हाँ, ये ऐसी चीज नहीं है, रूब्रिक्स खुल के रखिएगा, है ना। Give them the already set criteria to the students. You will be evaluated on this and this and this and this basis. बता दीजिएगा क्या हाफत आने वाला है, कुछ नहीं, है ना। See for example, when you are giving a question to the students, differentiate between exothermic and endothermic reaction by giving at least 3 points. तो बच्चों ने लिख लिया the exothermic reactions and endothermic reactions. साइंस का एग्जाम्पल्स में दे रही हूँ। तो चेकिंग हिंट जो है, टोटल मार्क्स हमारा जो 6 है, क्राइटेरिया 2 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीट डिफरेंस। अगर बच्चे ने कंप्लीट डिफरेंस लिखा है, अगर कहीं पे भी इनकम्प्लीट डिफरेंस हो, देन यू कैन रिड्यूस द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बच्चों को ये सब चीजें बताना चाहिए कि when we are asking you the differences, you will be evaluated on complete differences. When we are asking you to define, you have to define with examples, because based on examples also you will be evaluated. मैंने कहीं काफी दफा देखा है, we just define something, बच्चे सिर्फ डिफाइन करते हैं, और कुछ बच्चे डिफाइन करते हैं उसके साथ एग्जाम्पल्स भी लिखते हैं, और उस बच्चे को आप 3 आउट ऑफ 3 देते हैं, कुछ बच्चों को आप लोग 2.5 देते हैं। और ये बच्चे पूछेंगे कि आपने मेरा हाफ मार्क्स क्यों कम किया, क्योंकि तुमने एग्जाम्पल्स नहीं लिखा है। तो सवाल भी आप ऐसा पूछिए ना, सवाल छुपा के क्यों रख रहे हैं आप कि बच्चे जब लिखेंगे तब देंगे, नहीं, ये कोई ग्रज की बात नहीं है ना, सवाल भी खुला होना चाहिए। That is known as art of asking questions. सवाल पूछना एक आर्ट है। So you have to, by giving 3 points लिखिए ना। आप अपने दिमाग में क्यों रख रहे हैं कि हाँ I will be evaluating them only based on 3 points. तो कुछ बच्चे, मतलब मेरे साथ भी, I still remember, एक दफा सवाल में ये पूछा था कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ समथिंग, साइंस में था, मैंने एडवांटेजेस लिखा और मुझे सिर्फ हाफ मार्क्स दिया। तब टीचर ने मुझसे कहा कि जब एडवांटेजेस पूछते हैं तो उसके साथ आपको डिसएडवांटेजेस भी लिखना है। तो बताया क्यों नहीं आपने, या पूछने में क्या है, थोड़ा सा लिखो ना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्योंकि that is what known as the art of asking questions. Questions भी आपको खुला होना चाहिए ताकि बच्चे elaborately सोचे उसके ऊपर, isn't it? और examples भी with suitable examples, with मतलब कुछ बच्चे जो हैं with suitable example आपने लिखा है तो एक एग्जाम्पल पे भी आपने मार्क्स देना पड़ेगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे 4-5 एग्जाम्पल्स लिखा है तो आपने देखा अच्छा इसने 4 एग्जाम्पल लिखा है, इसने सिर्फ 1 लिखा है, चलो इसको ज्यादा मार्क्स देते हैं। गलत है, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ इवैल्यूएटिंग। व्हाट डू यू थिंक, क्वेश्चंस ओपन होना चाहिए या आपको छुपा के रखकर ये निकालना चाहिए कि बच्चे जब लिखेंगे तब हम मार्क्स देंगे? व्हाट डू यू थिंक? No, ma'am, transparent होना चाहिए. There should be transparency. Written clearly. It should be written Yes, clearly. should be open in PDF. Exactly. Thank you so much. That means the question should be worded properly also. मैं ये कह रही हूँ कि हाँ वर्डिंग्स भी उसको है ना बहुत अच्छे से वर्डिंग उसका अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी वर्डेड प्रॉपरली। मैं ये नहीं कह रही कि टीचर से हर वक्त, हम कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है, टाइपोग्राफिकल एरर हमसे भी हो जाता है, इट्स वेरी क्वाइट नॉर्मल। गलतियां एडमिट करने में कुछ नहीं होने वाला,
isn't it? जैसे हम करते हैं ना, अगर हमसे भी कुछ गलती होगी वो उसी वक्त सही करने में क्या प्रॉब्लम है? To err is human, isn't it? But to forgive is divine. गलतियां इंसान से होती है, माफी भी इंसान को ही देना है, उसके लिए हैवान थोड़ी आएंगे, नहीं, सबसे गलतियां हो सकते हैं। वी आर नॉट प्रोग्राम्ड मशीन्स, है ना? तो साजिद सर, आई वुड लाइक टू एडमिट, जब भी मुझसे गलती होती है ना, आई वुड लाइक टू रिमेम्बर द वर्डिंग्स ऑफ प्रोफेसर साजिद जमाल। वो मुझसे कहते हैं कि नूरा मैम, गलतियां उनसे होती हैं जो लोग काम करते हैं। बहुत सुकून है ना उसको सुनकर। Yes, ma'am. हाँ, जो लोग काम करते हैं उनसे गलतियां होती हैं। एक टीचर ने एक टेस्ट लिया था, टीचर ने लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे टीचर ने जानबूझकर छोड़ दिया। हाँ, तो स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने फ्राइडे नहीं लिखा है उस पे, तो टीचर ने फ्राइडे भी लिख लिया उस पे। एक टेस्ट वो था, और टीचर ने कुछ ऐसा लिखा था कि मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई का स्पेलिंग टीचर ने JULI लिखा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि व्हाट इज दिस? टीचर ने पूछा। किसी ने भी ये नहीं कहा है कि यू हैव रिटन द नेम्स ऑफ द मंथ्स, सब ने ये कहा है कि सर आपने जुलाई का स्पेलिंग गलत लिखा है। तो जमाना ऐसा ही है, मतलब जितना भी हम लोग, मतलब वॉट एवर राइट थिंग्स दैट वी डू, पीपल विल बी फोकसिंग ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर रॉन्ग थिंग। शायद हम भी ऐसा हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम एन एक्सेप्शन और यू आर एन एक्सेप्शन, सब लोग ऐसा ही है। लेकिन माई प्रोफेसर ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, गलतियां निकालना उनके लिए एक आर्ट है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, और हमारा काम क्या है? उसको मतलब दबा के आगे बढ़ना। So simple, isn't it? So that is this is one of the type of rubrics that we used to use, especially in the, ये साइंस का एक एग्जाम्पल है। अब ये है कि मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल है। इसमें आपको दिख रहा है ना पीपीटी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visual. हाँ, ये मैंने इमेज लिया है कहीं से, मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। Find the value of x square plus 1 by x square when x plus 1 by x is equal to -12. x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, बस ये जो इसका वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है मैथमेटिक्स में, फिर जब मैं रूब्रिक्स के बारे में जब भी पढ़ाती हूँ, तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6, हर एक स्टेप के लिए हमने एक मार्क्स दिया है, ठीक है। तो फिर कुछ बच्चे होंगे जो 2-3 स्टेप्स ऐसे मतलब मिस करते हैं, और दिमाग में सोचकर जो है मतलब बहुत ही ब्रिलियंट होंगे, ऐसे भी लिखते होंगे। क्यों? व्हाट डू यू थिंक? Yes, ma'am. It happens. हाँ, तो मेरा मतलब उसमें ये है कि ये हमें उन्हें पहले समझाना पड़ेगा, isn't it? प्रॉब्लम है कि जैसे कि आप एक इंटरव्यू में गए, आपके मतलब सीवी में आपके बारे में खूब लिखा है, आप ये जानते हैं, आपका कंप्यूटर्स के लिए है, आपका सॉफ्टवेयर के लिए है, प्रेजेंटेशंस के लिए है, आपके डिग्रीज, क्वालिफिकेशन सब लिखा है, एवरीथिंग। और इंटरव्यू में आकर बैठ गई और किसी ने आपसे कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तब हम ये कह सकते हैं कि मेरे बारे में सब कुछ मेरे सीवी में लिखा है? Is it okay? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, that is very rude on our part. Of course, मेरे बारे में सब कुछ आप मेरे सीवी में लिखा है, आप उसको देख लीजिए। तो ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आपको पता है, ये हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। आपको सारे स्टेप्स मालूम है, दैट वी शुड आल्सो नो दैट। और इसमें एक प्रॉब्लम भी है, कुछ बच्चे जो हैं 2-3 स्टेप्स लिखते हैं, फिर उन्हें वहां पे अटक जाते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते, फिर फाइनल आंसर ऐसे निकाल के दूसरे पे मतलब निकाल देते हैं और फाइनल आंसर लिख देते हैं। ये भी हो सकता है ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, होता ma'am. नहीं है, हो सकता है ऐसा, ऐसा बहुत होता होता है। है। हाँ, Yes, ma'am. बहुत होता है ऐसा। Most of the time, मैम, ऐसा होता है, बच्चे जो है कुछ स्टेप्स करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। Yes, ma'am. हाँ, बिल्कुल। और हम सोचें कि अरे बेचारा बहुत ही कामयाब बच्चा है, 1-2 स्टेप्स छोड़ भी दिया लेकिन फाइनल आंसर तो लिखा है। नहीं, डोंट गिव मार्क्स, प्रिपेयर द रूब्रिक्स, और उन्हें बताना चाहिए कि मेजर स्टेप्स जो है
जितना भी मेजर स्टेप्स है, अगर आपको पता भी हो तब भी आपको लिखना है. You have to write almost all the major steps because you will be evaluated based on these steps. That clear instruction. छोटा छोटा मोटा, जैसे कि फर्स्ट स्टेप इसमें लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, शायद छोड़ सकते हैं, लेकिन स्क्वायरिंग के बिना हमें पता नहीं चलेगा कि ये 144 आंसर पे यानी कि स्टेप 3 पे ये Yes, ma'am. You have to do square, not written कि squaring both sides, but you have to do square in both sides. we have to do squaring. तो that means ये जो है, ये अगर स्किप किया तो भी हम मतलब मेजर जो पॉइंट्स है उसके लिए हमें रूब्रिक्स बनाना है. We have to prepare the rubrics and we have to prepare the steps. That will be the checking hints. So that is an example of the mathematics. मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा सब सब्जेक्ट से लिया है because I know that you are teaching different subjects. पूरा मैंने कवर नहीं किया होगा, फिर भी मैंने कोशिश किया है. एंड नाउ क्राइटेरिया फॉर एसे राइटिंग, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली विथ रेस्पेक्ट टू एसे राइटिंग. मतलब जितना मतलब कोई भी एसे हो, सी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंग्लिश का एग्जाम्पल दिया है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश का एग्जाम्पल दिया है. दैट मीन्स व्हेन यू आर assessing the performance of the students with respect to English language, when you are assessing the performance of the students with respect to an English language, when you are creating an essay, Ma'am, you are not audible. ऑडिबल नहीं है क्या? Ma'am, you are not audible. Ma'am, you are Ma'am, not audible. किसी नहीं शो हो रही है. शायद नेटवर्क इश्यूज है, I think. मैम यू आर नॉट ऑडिबल. नेटवर्क इश्यूज लग रहे हैं. आई थिंक नेटवर्क इशू. अस्सलाम मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी. नेटवर्क कामरान सर, नेटवर्क इशू हो रहा है शायद. वेट कीजिए आप लोग, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, आ जाएगी आवाज. am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लाइट Yes, का ma'am. प्रॉब्लम था ना. Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is criteria when we are using for evaluating an essay. So here we have to prepare the indicator. तो हमने यहाँ पे एक इंडिकेटर फिक्स किया है, दैट इज लेंथ ऑफ द एसे, रेलेवेंस ऑफ द मटेरियल, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पार्ट, कंक्लूजन, और उसमें ग्रामर, राइटिंग एंड स्पेलिंग न्यूज, उसमें काफी इंडिकेटर्स फिक्स किया है. और मुझे पहले ही आपसे ये कहना है कि दीज इंडिकेटर्स आर flexible according to the subject and according to the topic. ऐसा नहीं है कि एक दफा आपने फिक्स करके रख लिया इंडिकेटर वो सब पे चलेगा, नहीं. according to the topic, according to the content, according to the subject हमें जो है इंडिकेटर्स चेंज करना चाहिए. ये प्योरली एक ग्रामर का ऐसे है, isn't it? ग्रामर में ज्यादातर हम लोग टेंसर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, subject verb agreement, adjectives, adverb, spellings, standard words, इस तरह करके क्राइटेरिया सेट करते हैं. तो बिकॉज इंग्लिश और एनी लैंग्वेज जो है वो एक स्किल सब्जेक्ट है, कंटेंट सब्जेक्ट नहीं है. तो हम यहाँ पे स्किल पे ज्यादा फोकस करेंगे और हमने उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यानी कि वीक, एवरेज एंड गुड. अगर वीक हो तो सी फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ द एसे बहुत वीक है तो फिर हम लोग 1 मार्क्स देंगे. लेंथ ऑफ द एसे अगर एवरेज है वी विल गिव 2 मार्क्स एंड वी विल गिव 3 मार्क्स फॉर गुड. इस तरह करके हमको इंडिकेटर पहले बनाना है एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन असेस द
परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इट्स नॉट लाइक इन द केस ऑफ अ शॉर्ट आंसर और नॉट लाइक इन द केस ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. तो इसमें जो है वर्ड्स तो हम एक एक करके काउंट तो नहीं कर सकते, रैंडमली हम उसको एसेस कर सकते हैं कि कितना वर्ड्स हैं. और रेलेवेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो टॉपिक आपने पूछा है उसी के बेसिस से ही उन्होंने जवाब लिखा है. एंड नाउ आई वांट टू डिस्कस ऑन दिस पॉइंट. हम लोग काफी सवाल पूछते हैं ना, एक्सप्लेन द सो एंड सो, डिफाइन, फिर क्या क्या होता है? Discuss, differentiate, elaborate, enlist, describe, illustrate, elaborate. हाँ, और फिर enumerate, analyze, mention. ठीक है. ये कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे पूछते हैं या ऐसे ही पूछते हैं कि पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन, तो चलो ठीक है, दूसरा डिस्क्राइब करते हैं, जब 2 डिस्क्राइब हो गया चलो ठीक है, तीसरा डिस्कस करते हैं, इस तरह है? No, ma'am. No, ma'am. No. हाँ, अगर मेरे है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तीनों सवाल आपको एक्सप्लेनेशन पे ही पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है ना. लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्रिटिकली एनालाइज करके एक सवाल पूछ लिया. क्या बच्चे क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं? No, ma'am. एक ही नो आया है, बाकी सबका यस है. No, ma'am. No, ma'am. बच्चों को हो या इवैल्यूएट हो या एनालाइज हो, वो ये हो, बच्चे से कोई मतलब नहीं है. वो सिर्फ वही सवाल, वो चीज देखते हैं कि क्रिटिकली एनालाइज मतलब हाँ, द see for example the question is critically analyze the French Revolution और the causes of 1857 revolt. उन्होंने बस causes मिल गया 1857 revolt. कुछ बच्चे causes भी नहीं देखते हैं. चलो ठीक है, 1857 रिवोल्ट मिला, 1857 रिवोल्ट के बारे में जो भी पढ़ा है पूरा लिख लिया, और उसमें से टीचर को जो चाहे जहां से चाह रहे हैं आप उसमें से ले लीजिएगा और सवाल का मतलब जवाब का मार्क्स दे दीजिएगा. क्यों ऐसा होता है ना? Yes, ma'am. True, ma'am. Yes, he was Most of the time. Most of the time. Civics and geography students do they like this. बिल्कुल यही हो रहा है. In एक English दफा language, मार्क्स ma'am, कम करके देख लीजिएगा. Yes, ma'am. For long answers, पैसेज में खास तौर से होता है, बच्चे पैसेज के जवाब देते हैं, वो पैराग्राफ पूरा का पूरा नोट कर देते हैं टीचर्स के लिए. हाँ बिल्कुल. for long It's not the answers, case with students. जी मैम, थियरम से भी ऐसा होता है. कभी कोई Yes. थियरम का कोई पार्ट पूछिए, दे राइट ऑल आंसर ऑफ ऑल द थियरम्स. All the theorem. बिल्कुल. और उसमें से मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह का सांबार बनाते हैं, मुझे ये एग्जाम्पल्स आते हैं, सारे वेजिटेबल्स डालकर उसमें से जो आपको पसंद है ले लीजिएगा. Ma'am, pick and choose option is with the teacher. हाँ, और काफी बच्चों को मैंने मैथमेटिक्स में ये देखा है कि उन्हें कंफ्यूजन होता है कि ये प्लस है या माइनस है, तो वो क्या करते हैं कि माइनस अच्छे से करते हैं मतलब, और फिर एक हल्का सा लाइन ऊपर से खींचते हैं. एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली. बिल्कुल बिल्कुल. They leave it, for to long the answers, they prerogative are of the teacher writing. to analyze the question and mark it. They are Exactly. writing the summary. For long answers, they are writing the summary of the lesson. हाँ, एक दफा है ना सबके मार्क्स कम करके देख लीजिएगा तो फिर ये सही हो जाएंगे मेरे ख्याल से. उन्हें पता है कि मैंने आपको Even in ma'am, MCQs, ma'am, बच्चे they ऐसा करते used हैं? to write 2 options. यस मैम. हाँ, अगर उन्हें कंफ्यूजन होती है तो एक लिखते हैं, फिर दूसरा भी हल्का सा लिख देते हैं. हल्का सा Yes, लिख देते हैं. यही Ma'am, होता pick है. and choose option is with the teacher. The rest is with the teacher. मैम साइंस में तो 2 दी पॉइंट आंसर होता है, उसके बावजूद भी मैम पता नहीं कैसे कैसे आंसर लिखते हैं कि मैम आप चूज कर लीजिएगा जो आपको बेहतर लगे, आप उसमें मार्किंग कर दीजिए. बिल्कुल बिल्कुल. एंड दे आर मेकिंग अस टू डू द वर्क. Ma'am, even Yes, even ma'am. Yes, Exactly, ma'am. जैसे आजकल लोग चैट जीपीटी से काम करवाते हैं ना. चैट जीपीटी से एक पूछा मैम, आपको जी खुद सर. से आंसर, आपको खुद से नंबर देने भी नहीं देंगे. जब आपने उसको माइनस समझ के अगर वो नंबर आपने डिडक्ट कर दिया, जब आप हाँ. उसको कॉपी दिखाएंगे तो सर ये दिस इज प्लस,
हाँ, this सर वो is गलती से गलती से यस यस मैम। ये भी हो सकता है। और कुछ बच्चे जो है सवाल का ये ग्रेजुएशन पे ये होता है, क्या करते हैं आपको पता है, सवाल का नंबर नहीं लिखते हैं, जो चाहे किसी भी सवाल में आप इसको डाल दीजिए। ये है। मतलब कोई क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना, वो लोग नंबर नहीं लिखते हैं, बस जवाब लिखते हैं। तो हम लोग पूछे ये किस सवाल ये का बोर्ड जवाब, कॉपीज में होता है मैम, बोर्ड की हाँ, कॉपीज में भी ऐसा होता है। बिल्कुल, जी मैम। ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो, ये किस सवाल का जवाब है। और फिर कहीं ना कहीं किसी भी सवाल पे मिलता जुलता हो गया, चलो उसको मार्क्स देना पड़ रहा है। दिस इज व्हाट हैपनिंग। तो हम लोग भी मजबूर है ना, वी आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ मेकिंग दम पास। अरे पास करवा दो उसको, इसी पे हो गए। हमारे भी इवैल्यूएशन हैज रीच्ड टू दैट पर्टिकुलर लेवल, लेकिन रूब्रिक्स के हिसाब से उनको मार्क्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं यू हैव टू क्रिटिकली इवैल्यूएट। क्रिटिकली इवैल्यूएट में ये सब चीजें पॉइंट्स है। आपने बहुत लिखा है, उसके लिए आपको या 2 मार्क्स मिलेंगे या आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये सिस्टम जो है यूजुअली इन डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा ही होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में आप लोग देख लीजिएगा कि फिनलैंड का या अदर यूरोपियन कंट्रीज का किस तरह है उनका जो इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स, इट इज वेरी पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन रूब्रिक्स, ताकि बच्चे सोचिए उसके बारे में, क्रिटिकली उसके बारे में एनालाइज करें। हमारे बच्चों का सोच भी कहाँ गए हैं आजकल। ये सब सारे बच्चे एक कंफर्टेबल जोन पे पहुंच गए हैं, और उनका कंफर्टेबल जोन क्या है, अपना मोबाइल फोन, अपना कमरा और अपना बेड। और बेड भी कहाँ पे होना चाहिए, एक दीवार की तरफ जहां पे चार्जिंग पॉइंट। इज इट, एम आई राइट? True, ma'am. Absolutely Yes, right. ma'am. Absolutely right. Absolutely right, Happening in our absolutely right. homes. बिल्कुल। और ये है और ये है Yes, उनका ma'am. कंफर्टेबल जोन, और ये है उनका कंफर्टेबल पॉइंट, और इसी से काम चला रहे हैं वो। दैट इज द ओनली वे दैट दे आर डूइंग ऑल द, मतलब एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। वो अपने, मतलब आजकल मैंने पढ़ा है कि देयर इज अ वेरी सीरियस डिसीज दैट इज कमिंग इन आवर स्टूडेंट, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, दैट इज सोशल इंटरैक्शन एंजाइटी। सोसाइटी में बाकी लोगों से इंटरैक्ट करने में दे आर गेटिंग एंशियस। इवन इफ आई एम टेकिंग माय किड्स आल्सो, मेहमान आया है बेटा जाके बात करो, पहला सवाल मैं क्या कहूंगी उनसे, मैं क्या पूछूंगी उनसे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या बात करना है उनसे। मोबाइल में हर वक्त आप बातें करते रहते हैं, पता नहीं किससे बातें करते रहते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, मीडिया पे आप लोग खूब गालियां भी देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया एटिकेट वो भी कम हो गए हैं। So that made our comfortable zone, बच्चे सोचते नहीं। और आजकल चैट जीपीटी से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से सोचते बिल्कुल खत्म हो गए हैं। क्रिटिकल एनालिसिस हैज कंप्लीटली लॉस्ट। वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्टिंग, कॉपी पेस्टिंग, सवाल दे दिया, कॉपी पेस्टिंग, कॉपी पेस्टिंग। किसी ने अनम्यूट किया है, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? आपको आवाज आ रही है या सिर्फ मुझे आ रहे हैं? Ma'am, you are audible. कैन एनीवन प्लीज म्यूट? कौन है? शहजाद सर का खुल रहा है। शहजाद सर, कैन यू प्लीज? शायद म्यूट हो गया। ओके, सो दैट इज especially with respect to you can hear me, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. That is the comfortable zone of the student। जैसे मैंने कहा कि सोशल इंटरेक्शन एंजाइटी, और जो बच्चे जो है आज, पहले जो हम लोग जो बच्चे से कहते हैं कि असाइनमेंट लिख कर आओ एक टॉपिक पे, मतलब 2 पेज या 2 पेजेस या 3 पेजेस, तो बच्चे जो हैं पहले बहुत वो करते थे, मतलब अरे 3 पेजेस का असाइनमेंट। आजकल असाइनमेंट मिलने से बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल नेक्स्ट डे आपको असाइनमेंट सबमिट करते हैं। क्यों? What do you think? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओनली ChatGPT is doing the work, ma'am. वो कॉपी करते हैं जीपीटी एआई से और ला करके आपको सबमिट कर देते हैं। सबमिट कर देते हैं। Less work, better marks. बिल्कुल।
और वो पढ़ते भी नहीं है उसको, उसमें क्या लिखा है कुछ है। क्योंकि चैट जीपीटी में ये नहीं कह रही हूँ कि एआई टूल्स जो हैं हमारे लिए बेकार है, एआई टूल्स तो चाहिए लेकिन हमें सपोर्ट करने के लिए चाहिए एआई टूल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, एआई को ये नहीं पता है कि कौन सवाल पूछ रहा है। Yes, ma'am. Can you Students are please- totally dependent on that. They completely copied. They completely copied. हाँ, दे कम्प्लीटली कॉपी। और चैट जीपीटी को ये भी नहीं पता है कि किस लेवल के बच्चे। कल उस दिन मैंने देखा था कि मतलब देयर वाज अ टीचर हु वाज एक्सप्लेनिंग हर एक्सपीरियंस। ये कह रही है कि 7th स्टैंडर्ड के बच्चे जो असाइनमेंट लेकर आ रहे हैं उसका जो वर्ड्स जो है हाई लेवल ग्रेजुएशन वाले लोग भी उसको समझेंगे नहीं। मतलब उसने ऐसा टाइप किया होगा टॉपिक, चैट जीपीटी को क्या पता कि किस लेवल के बच्चे पूछ रहे हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Exactly. Yes. हाँ, तो फिर उन्होंने ऐसा ही जवाब दिया होगा। और टीचर ये पढ़ते हैं, टीचर को भी खुद समझ में नहीं आ रहे हैं कि किस तरह का सवाल है ये। So that is what can you please mute yourself? Mr. Shehzad's mic is on. Shahzad sir, can you please mute yourself? I think by mistake हो गया है, उन्हें शायद आवाज मिल नहीं रही है। हाँ, आवाज मिल नहीं रही है। चलो ठीक है। उनका नंबर हो, फोन नंबर किसी के पास हो, फोन कर दें। So that is criteria for essay writing. These are the certain steps. And इसमें जी है story writing भी है, उसमें भी मैंने कुछ indicators बनाए हैं। See, if you are asking a story, a students to write a story, क्योंकि आजकल competitions में भी मतलब writing skills, story writing competitions भी है, poetry writing competitions भी होता है, तो काफी competitions भी है, हम लोग उसमें judge होता है, and we used to evaluate the performance of the students based on certain criteria also. So these are a few indicators that I have kept over here. That is, beginning में टाइटल अच्छा होना चाहिए, कंप्लीट सेटिंग प्रोवाइड करना चाहिए, कैरेक्टर्स के बारे में मेंशन होना चाहिए, और एक सीक्वेंस में होना चाहिए स्टोरी, चाहे अप एंड टॉप टू बॉटम सीक्वेंस हो या बॉटम टू टॉप सीक्वेंस हो। कुछ स्टोरी ऐसा है कि पहले फ्लैशबैक बताते हैं, है ना, तो इस तरह का इन वॉट एवर सीक्वेंस दैट यू आर फॉलोइंग, अपसाइड डाउन हो या नॉर्मल सीक्वेंस हो, दैट इज ऑल्सो गिवन इनटू कंसिडरेशन। द सेंटेंस स्ट्रक्चर, द यूज ऑफ ग्रामर, किस तरह आपने एंड किया, उसका टोटल लेंथ क्या है, दीज आर द सर्टेन क्राइटेरिया और सर्टेन इंडिकेटर्स जो यहाँ पे सेट किया है। इस तरह किसी भी इंडिकेटर, मैं ज्यादातर एग्जाम्पल्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप इंडिकेटर्स कैसे सेट करेंगे उसके बेसिस पे होगा, और इंडिकेटर्स जो हैं आपको स्टूडेंट्स के हिसाब से सेट करना चाहिए। You have to set the indicators based on the performance of the students. That is why you have to give very much attention to क्या आपने पढ़ाया है और क्या बच्चों का क्या आपको इवैल्यूएट करना है। Based on that you have to set the indicators. और ये है असाइनमेंट। ज्यादातर हम लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि असाइनमेंट पे, है ना, क्योंकि हर सब्जेक्ट्स में हम लोग आजकल असाइनमेंट दे रहे हैं। इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स वी यूज्ड टू गिव असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स। दैट मींस वी आर असाइनिंग अ टास्क टू द स्टूडेंट्स, है ना, वी आर असाइनिंग अ टास्क टू द स्टूडेंट। जैसे कि क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने सेट किया है कि रेगुलरिटी जो है, नीटनेस, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम और टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, alignment with the learning outcomes, isn't it? Whatever learning outcomes that you have set, usse aligned hai. And analysis of different perspective, educational contribution kya hai, agar us topic mein educational contribution se related kuch hai to aap wo criteria set kar sakte hain। ethical aspects bhi hai aur kaise usne usko khatam kar diya hai। और ये जो indicators जो हैं ये general हैं, is it? These are certain general indicators for evaluating the assignments. हर टॉपिक में आप उसको स्पेसिफिक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम और टॉपिक, तो जो प्रॉब्लम आपने दिया है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दैट विल बी द क्राइटेरिया।
isn't it? So अगर बहुत अच्छे से लिखा है then that is excellent, नहीं हो तो फिर धीरे धीरे करके excellent to poor आप उसको ग्रेड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप उनको मार्क्स दे सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे होंगे कि जनरल होंगे, कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो जनरल हैं, तो इसलिए जिस तरह हमने शॉर्ट आंसर्स और टॉपिक को मार्क्स दिया है और पॉइंट्स को मार्क्स दिया है, उसी तरह असाइनमेंट में नहीं दे सकते, तो हमें उसमें मोटा मोटा लिखना पड़ेगा, यानी कि इन जनरल हमें लिखना पड़ेगा। मेरे लिए प्रॉब्लम जिस तरह मैंने अंडरस्टैंड किया दूसरों के लिए अलग नहीं होगा। सी फॉर एग्जाम्पल आपने डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी एक टॉपिक दिया असाइनमेंट में, किसी के लिए वो अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा, तो इसलिए अच्छा है उसी के की पॉइंट्स बना के जिन्होंने उसके ऊपर बुरा लिखा है उसको आप मार्क्स कम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, दैट इज एन इश्यू। तो इस तरह का अगर टॉपिक देंगे कि कैसे इसको इवैल्यूएट करेंगे, तो उसमें हमें जनरल इंडिकेटर्स यानी कि जनरल क्राइटेरिया देना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक को उसने बहुत अच्छी तरह समझ लिया, आपको ऐसा लग रहा है, देन गिव देम दैट पर्टिकुलर मार्क्स। टॉपिक उसने अच्छे तरह ऑर्गेनाइज किया, चाहे उसके बारे में अच्छा लिखा हो या उसके बारे में बुरा लिखा हो, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, then you have to give the marks. So that is the peculiarity with that of the assignments. That means you have to create a general criteria or general evaluation indicators with respect to the rubrics. यहाँ तक आपको समझ में आ गए? जी मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. इसके बारे में एक आइडिया तो मिल गई होंगी ना अब तो? यस मैम। Of course, ma'am. Of course. So there are certain, ये है मतलब rubrics, मतलब what you want to do with rubrics or how you can evaluate through rubrics. So that is very simple. Now these are the few guidelines for using rubrics. There are certain set guidelines on how to use your rubrics. पहले मैंने ये कहा है कि after preparing the rubrics, provide the rubrics to the students. मतलब they will be getting awareness about the level of performance, मतलब किस तरह हमें परफॉर्म करना है, किस लेवल तक हमें परफॉर्म करना है, ये आइडिया स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे। You have to provide your rubrics to the students and you have to explain the criteria or you have to explain the descriptors to the students. That means you have to make them aware about the evaluation और व्हाट आर द क्राइटेरिया, उसको देना भी है और उसके बारे में उनको मतलब एक्सप्लेनेशन आपको देना भी है। एंड इसमें से कुछ ओमिशंस और कुछ एडिशंस अगर आप कर रहे हैं, देन यू हैव टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स कि मैंने अपने रूब्रिक्स में एक और चीज ऐड किया है। बाद में हमें ऐसा ख्याल आया कि हमें एक और चीज भी उसमें इंक्लूड करना है। यू कैन इंक्लूड, रूब्रिक्स इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, लेकिन ये भी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। तो रूब्रिक से और ये फायदा भी है कि अगर बच्चे का मार्क्स बहुत कम आया, वो आपके पास आ रहे हैं ये मार्क्स लेकर, मैडम यहाँ पे मेरा मार्क्स बहुत कम हो गया है इस वाले क्वेश्चन में, मेरा प्रॉब्लम क्या था, टेक द रूब्रिक्स। उसमें कुछ ऐसे ही जो भी मन में आया, जो भी दिमाग में आया, उस वक्त कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेंगे आपको। इफ यू हैव ए प्रॉपर वेल स्टैंडर्डाइज्ड रूब्रिक्स, बच्चों को दिखा दीजिएगा कि बेटा ये जो एरिया जो है, कंटेंट जब बॉडी पार्ट लिखते हैं या जब चीजें कंक्लूड करते हैं, तुम्हारा कंक्लूजन में प्रॉब्लम है, तुम्हें कंक्लूजन में ओवरऑल मेन पॉइंट्स हमें एक इन ए नटशेल तुम्हें लिखना था, वो तुमने नहीं लिखा, कंक्लूजन तुमने लिखा ही नहीं है। कभी कभी बच्चे ऐसा भी करते हैं, तो इस तरह उनको गाइड करने में रूब्रिक्स विल आल्सो बी हेल्पिंग यू। And now when we are moving on to different types of rubrics, जो rubrics हम लोग आजकल करते रहते हैं, that is holistic rubrics, यानी कि पूरा करके एक मार्क्स दे दिया। मतलब एक क्वेश्चन है, what steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people? उसको 5 marks. This is what we are doing right now. But analytical rubrics जो है वो 5 marks जो है उसको डिवाइड किया। मैंने यहाँ पे, आप लोग दिख रहे होंगे, बच्चों का जवाब है ये 1 2 3 4 5 स्टेप्स। सोशल स्टडीज का एग्जाम्पल्स मैंने नहीं दिया था, तो इसलिए आई टुक an example over here. Following are the important steps taken by French revolutionaries to make an identity among French people.
Okay, idea of the fatherland and the citizen, tricolor French flag, Estate General was changed, new oath hymns and marches were commemorated, a uniform law was made. These are the major 5 important steps. अगर इसमें एक मिसिंग है, reduce the marks. कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि 3 लिखते हैं लेकिन तीनों को खूब 2-3 पेज एक्सप्लेन करते हैं, तो आप लोग ऐसे करेंगे, अरे बहुत मुश्किल से 2 पेजेस लिखा है, चलो पूरे मार्क्स देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि 5 के 5 पॉइंट्स लिखे होंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन उसमें कम होंगे। मार्क्स भी 5 मार्क्स का है ना, तो यू हैव टू गिव मार्क्स टू द पॉइंट्स, नॉट ऑन द अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन को नहीं, हमें जब आपके पास रूब्रिक्स हैं तब आपको कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। देयर विल बी नो सब्जेक्टिविटी, वेरी ऑब्जेक्टिवली यू विल बी गिविंग मार्क्स टू द स्टूडेंट्स, दैट इज एनालिटिकल rubrics. Beyond that, nowadays there is e-rubrics also. आज तक अभी तक जो रूब्रिक्स हमने बताया था वो हमें मैन्युअली उसमें प्रिपेयर करना है या वर्ड फाइल में या एक्सेल शीट में हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा रूब्रिक्स, लेकिन यहाँ पे ये जो है दैट इज ई रूब्रिक्स। ई रूब्रिक्स के बारे में सुना है? ई रूब्रिक्स नो मैम। आप लोगों ने गूगल क्लासरूम क्रिएट किया होगा, गूगल क्लासरूम। यस मैम। यस मैम। आपने अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करते हैं गूगल क्लासरूम? ड्यूरिंग ड्यूरिंग पीरियड जो है दे यूज। हाँ। तो आजकल वो जो गूगल क्लासरूम है, थोड़ा सा एडवांस लेवल गूगल क्लासरूम भी आ रहे हैं। उसमें ऐसा होता है कि जब बच्चे असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं, इवैल्यूएट करते वक्त आप लोग गूगल क्लासरूम में क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम में पहले ही क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, दैट इज मतलब ऑनलाइन ही आप लोग ऑन द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल क्लासरूम, बिफोर गिविंग द असाइनमेंट यू कैन सेट द क्राइटेरिया टू द स्टूडेंट्स, और जैसे ही बच्चे जवाब लिखते हैं ऑटोमेटिकली इफ इट इज मैचिंग द क्राइटेरिया यू कैन मतलब instant feedback, isn't it? Very instantly, very immediately एक एक करके उसमें मार्क्स चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 करके। अगर 10 मार्क का असाइनमेंट है, टोटल मार्क्स भी बच्चों को ऑनलाइन ही आप दे सकते हैं। ये सिर्फ गूगल क्लासरूम का है। इस तरह करके असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स पे इंस्टेंट फीडबैक और क्राइटेरिया बेस्ड इवैल्यूएशन के लिए काफी अलग सा सॉफ्टवेयर भी है, और काफी एआई टूल्स के इस्तेमाल करके हम लोग बना भी रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन 5 to 10 years वी विल बी मोर एडवांस्ड इन द असेसमेंट। उस वक्त हमें मतलब हाथ से लिखकर रूब्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट मतलब क्या कहते हैं, रेडीमेड रूब्रिक्स भी हमें मिल जाएंगे। अगर हमें उसमें चेंजेस करना है हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन रेडीमेड रूब्रिक्स वो लेकर आना है, हमारे प्लेटफॉर्म पे डालना है। बच्चे जब असाइनमेंट सबमिट करेंगे, ये जो पॉइंट्स के उसके बेसिस पे उसको इवैल्यूएशन होंगे और उस पे मार्क्स भी होंगे। कुछ ऐसा भी है कि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सेट किया, बच्चों ने हमें असाइनमेंट भेज दिया, उसके हमें चेक करके मैन्युअली एक एक क्राइटेरिया के आगे हम लोग मार्क्स दे सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। जब हम सबमिट करेंगे वो बच्चों के अपने गूगल क्लासरूम में उसके मार्क्स मिल जाएंगे। किस बेसिस पे? एक एक क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो बच्चों को वेरी इजीली समझ में आएंगे कि किस क्राइटेरिया में मेरे मार्क्स कम हो गए हैं, तो वो उसमें इंप्रूव करेंगे, isn't it? That is e-rubrics, which is criteria based evaluation and scalable performance levels. Performance level को scale कर रहे हैं, excellent, good, fair, poor, वो भी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अगर आपने एक क्राइटेरिया में आपको 2 out of 2 मिला है तो वहां पे दिखेंगे एक्सेलेंट। वो खुद एक मोटिवेशन है ना, एक रीइंफोर्समेंट है स्टूडेंट्स के लिए। एंड इट इज डिजिटली एक्सेसिबल, बच्चे कहीं पे भी हो, अगर उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, गूगल क्लासरूम एक्सेस कर सकते हैं, फ्रॉम एनीवेयर दे कैन चेक व्हाट इज देयर परफॉर्मेंस। और उसमें इमीडिएट फीडबैक भी है। बच्चों को स्कूल में आना है, फिर बच्चों को पूछना है कि मैम मेरा ये मार्क्स कम क्यों हो गए, फिर आपको रूब्रिक्स का हार्ड कॉपी लेकर आना है, दिखाना है, ये सब झंझट खत्म। ऑनलाइन इटसेल्फ उन्हें पता चल जाएगा किस क्राइटेरिया में मेरे मार्क्स कम हो गए हैं और कहाँ पे
मुझे इम्प्रूव करना है। एंड इट इज ऑल्सो ऑटोमेटेड स्कोरिंग, मतलब ये इतना एडवांस नहीं हुआ है, लेकिन कुछ रूब्रिक्स ऐसा भी है ऑटोमेटिकली स्कोर देते हैं, टीचर्स को मैन्युअली चेक करके मतलब मार्क्स देने की जरूरत नहीं है। देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स विच मतलब वो कैच करते हैं कि बच्चों ने ये पॉइंट्स लिखा है, ये क्राइटेरिया, मतलब ये क्राइटेरिया इस पे, इस सेंटेंस पे ये क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, चलो then you can give 2 out of 2, मैच नहीं हो रहे हैं 0 out of 2. So there is automated scoring procedures also. So that is e-rubrics. इतना एडवांस नहीं हुआ है, लेकिन गूगल प्लेटफॉर्म में ऑटोमेट मतलब ऑलमोस्ट एडवांस्ड e-rubrics आपको मिल जाएंगे. So these are the various key features of e-rubrics. Now how to prepare rubrics. जैसे हम लोग आजकल तो मतलब इतने देर तो यही बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मैं बताना चाह रही हूँ कि हाउ यू कैन प्रिपेयर ए रूब्रिक्स. फर्स्ट वन, लिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया. जो भी क्राइटेरिया है पहले उसको लिस्ट आउट करना है, उसको लेवल ऑफ ग्रेडेशन देना है, यानी कि 1 2 3 4 5, एंड ईच लेवल को आपको एक्सप्लेन करना है, एंड देन you have to give your rubrics to an expert. ये भी एक एक्सपर्ट को अगर आप दिखाएंगे, या किसी सीनियर टीचर को या किसी एक्सपीरियंस्ड टीचर को आप उनको दिखाएंगे कि सर मैंने जो क्राइटेरिया सेट किया है वो सही है, इसमें कुछ डिलीशन चाहिए या कुछ एडिशन चाहिए, पूछने में क्या है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो. मैं तो ऐसे मानती हूँ कि डाउट किसी से भी अगर क्लैरिफाई करना है, उसमें क्या है, not an issue. Well, it's up to each and every teacher whether they want to show their rubrics to anyone expert and get a feedback. After that, your rubrics becomes the final. तो यहाँ पे मैंने एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ ऑन एयर पोल्यूशन. राइट अ पैराग्राफ ऑन एयर पोल्यूशन. तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है. आप अगर एक स्टूडेंट से ये पूछ रहे हैं कि अ पैराग्राफ ऑन एयर पोल्यूशन, तो आप किस किस क्राइटेरिया पे रूब्रिक सेट करेंगे? कंटेंट में एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, वर्ड लिमिट. Okay. Important points mentioned. हाँ. Ma'am, it will depend on Causes subject and also. effect. English teacher will be analyzing the paragraph in another way, and science teacher will be looking at that in another way. हाँ, Causes exactly. and An effect. English teacher will be looking the grammar, sentence structure, the concord, the spelling, the vocabulary used, everything, and the overall writing skill. But a science teacher will be more looking into the context, right? Yes. Yes, ma'am. Exactly. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So these are the various, that's why I told rubrics is always flexible. Criteria should be set according to the situations, according to the content, and also according to what you want to teach or what you want to give to the students. So I would like to end the session and 10 minutes we'll have for discussion. That if your assessment asks students to evaluate and create, but your instruction asks only that they remember and comprehend, then you have taken a wrong direction. अगर आप असेसमेंट में बच्चों से कह रहे हैं कि इवैल्यूएट करो, क्रिएट करो, वो करो, ये करो, लेकिन आपने जो पढ़ाया है उन्हें, that is only based on how to remember and understanding, then you have taken a wrong direction. आपको बच्चों को ऐसा पढ़ाना चाहिए ताकि वो खुद इवैल्यूएट भी करे, क्रिएट भी करे, एनालाइज भी करे. ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का भी एक प्रॉब्लम है, isn't it? हम बच्चों को डेफिनेशन बताते हैं, एग्जाम्पल्स बताते हैं, और हम सवाल पूछते हैं उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए. गलत है. क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए भी बच्चों को मोल्ड करना, वो भी एक टीचर का काम होता है, वरना असेसमेंट गड़बड़ है वहां पे, isn't it? Because our education system is teaching them H2SO4, 1 molecule of hydrogen, sulfur, 4 atoms of oxygen, सब मिला के पूरे केमिकल फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि वो ऐसे चीज नहीं है जिसके मुंह पे फेंकना है when someone is ditching you. ये नहीं बताते हैं हम लोग.
एटम के बारे में हम बहुत खूबियां बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर ये नहीं सिखाया हम लोगों ने कि उससे बॉम्ब बनाकर किसी को नुकसान करना है. We didn't teach them that. Very nice, ma'am. Very nice. ये सिखाया नहीं है हम लोगों ने उन्हें, ये भी सिखाना है, क्योंकि वो इवैल्यूएट करें, जज करें व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. बहुत सारी चीजें हम लोग बताते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि स्कूल के अलावा बच्चों के लिए आजकल हमारे इस जमाने में और कोई मौका नहीं है. पहले था, ग्रैंडमदर थे, ग्रैंडफादर थे, चचा थे, मामू थे, सब लोग थे, लेकिन आजकल नहीं है. सोसाइटी में पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते थे, अब नहीं कर रहे हैं. तो इसलिए स्कूल के अलावा बच्चों के पास और कोई मौका नहीं है, हमारे अलावा उनके पास और कोई नहीं है. लेकिन उनके दिमाग में ये है कि टीचर के अलावा उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नहीं है उनके पास. वो उनका एक अफवाह है, इट्स एन इल्यूजन. फेसबुक में मेरा 1500 फ्रेंड्स है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई फेसबुक फ्रेंड्स थोड़ी आएंगे. ये सोचने का दिमाग नहीं है हमारे बच्चों में. इंस्टाग्राम में मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, हु विल कम टू रेस्क्यू यू व्हेन यू आर इन ट्रबल. माँ बाप से बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं माँ बाप से बात. फ्रेंड्स से कर रहे हैं, दोस्तों से कर रहे हैं, माँ बाप से नहीं कर रहे हैं. टीचर से बातें नहीं हो रहे हैं आजकल. होना चाहिए, मौका दे दो उनको. That means let them explore, let them comprehend, let them understand, and finally let them evaluate. इसलिए मैंने कहा है कि आजकल we are not in a position to say yes or no, है ना. ये गलत है, ये सही है, ठीक तरह से समझाने में भी हम लोग मजबूर हैं. One mother was sharing her experience. Her daughter came to her और वो कह रही है कि lesbian relationship के बारे में. उसने पूछा, उस लड़की ने पूछा कि मम्मा अगर मैं उसमें गई तो व्हाट विल बी योर आंसर, क्या जवाब देंगे. तो अगर यस करेंगे तो गड़बड़. आपने कहा कि आपने इतना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे बता दिया और आप कह रहे हैं कि वो रिलेशनशिप सही है. तो मम्मा पूछे अगर मैं नो कहूं तो, जब हमारा गवर्नमेंट या हमारे जुडिशरी हमें उसके लिए अलाउ कर रहे हैं, तो आप क्यों मना कर रहे हैं. इंडिया इज अ लैंड ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द वैदिक लिटरेचर विद रिस्पेक्ट टू ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा से हमने शुरू किया है. वी एक्सप्लोडेड थ्रू द मुगल पीरियड एंड द बुद्धिस्टिक पीरियड. अब हम प्री इंडिपेंडेंस से लेकर मॉडर्न पीरियड पे पहुंच गए हैं और आप मुझसे नो कह रहे हैं, क्या जवाब देंगे. इसलिए शायद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ये कहा होगा कि लेट द स्टूडेंट मेक द एथिकल डिसीजन. एथिकल डिसीजन मेकिंग वो खुद करें, हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव देम द लॉजिकल फ्रेमवर्क. वो टीचर का काम है. पूरे लॉजिकल फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को देना हमारा काम है. उनके डिसीजन पे इस जमाने में हम इतना इंटरफियर नहीं कर पाएंगे. ये हमारे मजबूरी है, प्रॉब्लम नहीं है, मजबूरी है हमारी. सो दैट्स इट ऑल अबाउट. आई डोंट नो कि जितना मैंने कहा कि आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं है, ये मेरा परसेप्शन है, मैंने आपके साथ शेयर किया है. एंड थैंक यू सो मच. Absolutely right. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Very informative. Throughout the session ऐसा लगा आप हमारे दिल की बात है. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for enlightening us. Such a wonderful session. Thank you so much, ma'am. It was such a wonderful session. I really enjoyed. Thank you so much. Thank you so It much. was an informative session, ma'am. Thank you so much for listening. Actually, I was. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. The way you were explaining was